Hello everyone. Everyone, welcome to my PhD study zone. Today we just proceed to our next topic is statutory corporation. But before going to this topic, I want to tell you all something. Today is 12th May 2020. Okay, so our honorable Prime Minister had just some declared some future for our country. उन्होंने लॉकडाउन को लेते हुए आज एक एक्ट पास किया, यू कैन से इट योजना उन्होंने एक बनाई है. वी कॉल इट आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना, जो कि 12 मई 2020 को उन्होंने आज डिक्लेयर किया है. टुडे द 12 मई फॉर मी. आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो ऑन द डेट ऑफ 12 मई. तो उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना उन्होंने बनाई है, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ₹20 लाख करोड़ पैकेज they are going to provide for farmers, middle class families, land laborers, liquidity law areas. उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर किया. We are just getting updates today that Modi announces ₹20 lakh economic package to make India self-reliant. Self-reliant means आत्मनिर्भर. It is very इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर आवर टुडे. इसलिए मैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को पढ़ाने से पहले आपको कुछ इसकी डिस्कशन भी बीच बीच में करती जाऊंगी, जहाँ पे मुझे सही लगेगा कि इन्होंने जो बात आज कही है वो हम सब पे वो चीज़ लागू होती है. तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें डिक्लेयर की हैं इसमें. जस्ट ₹20 लाख फ्रॉम द RBI फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. ही हैज जस्ट पास द इकोनॉमिक पैकेज टू मेक इट इंडिया सेल्फ रिलायंट. Okay, our economic package equals 10% of India's gross domestic product, says Modi ji. Announced a special economic package today. This will play an important role in the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. The announcement made by the government over COVID decisions of RBI and today's package total to ₹20 lakh crores. This 10% of India's GDP, Modi said. Okay. Now he has just declared that we are in the fourth phase of COVID-19 lockdown will be completely new for all. Says PM, we must not restrict our lives only around coronavirus, Modi said in his speech on Tuesday, means today, and added that the fourth phase of the coronavirus lockdown, means on 28th May, in India will be completely different from the earlier three phases of the lockdown. अभी तक तो हम लोगों ने जो 3 phases लॉकडाउन के सफ़र किए हैं, उसके कंपैरिजन अगर इस फोर्थ फेज़ को देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंट है उस 3 फेजेस ऑफ द लॉकडाउन. मोदी जी ने आज ये अपने भाषण में ये चीज़ का पूरा यूज़ किया है और हम लोग को इस चीज़ से बचने के लिए भी बोला है. बट उससे अधिक इम्पॉर्टेंट ये है कि वी ऑल शुड बी अ सेल्फ रिलायंट. ओके. एंड द वन मोर थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द RBI, बिकॉज RBI हैव्स अ पैकेज ऑफ ₹20 lakh crore. You can say 20 lakh crore they are just providing the package or to the welfare of the middle class families, for the farmers, for the land labor, liquidity law areas. Next thing ki you know about the RBI. RBI is India's central banking and monetary authority, which was इनके पास एक ऐसी authority होती है, monetary authority. Monetary means the which is just related to the money. Was established on, कभी established हुआ था RBI on 1st April 1935 under the Reserve Bank of India. The RBI uses monetary package to create financial stability in India. Okay. This RBI bank was just created for providing the financial facility or the financial stability. इंडिया की स्टेबल कैसे फाइनेंशियल पोजीशन को अपने इंडिया में किया जा सकता है. तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के एक्सटेंशन के लिए भी बोला है कि इसका हम लोग हो सकता है, मे बी माइट बी इट विल गोइंग टू बी एक्सटेंड फॉर फ्यू डेज, नो वन नोज. ओके. बट इन दिस टॉपिक आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस कि सेल्फ रिलायंट इसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है. वी ऑल मस्ट बी अ सेल्फ रिलायंट. You can take the example of this कि whenever we are just purchasing the product from the outside, from our country, outside of our country, we always depend on that कि वो product हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. But इस जो भी उन्होंने आज लॉकडाउन के थ्रू जो भी बातें बोली, उसमें उनका मेन मोटिव ये था कि क्यों ना हम एक सेल्फ रिलायंट की पोजीशन में आ जाएं.
हम क्यों ना आत्मनिर्भर की बात करें, वाई वी जस्ट टोटली डिपेंड ऑन द अदर कंट्री, क्यों ना हम सारी चीज़ें सारे प्रोडक्ट अपने कंट्री में ही बनाएं, अपने एक लोकेलिटी में ही बनाएं, अपने एक एरिया में ही बनाएं, क्यों ना अपने एरिया में ही मैन्युफैक्चर करें, और क्यों ना हम लोग उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करके उस लोकेलिटी में प्रोडक्ट बनी हुई चीज़ों को अपने ही कंट्री में उसको एज ए ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में एडवर्टाइज़ किया जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। हम लोग को किसी अदर कंट्री की हेल्प लेने की नीड नहीं होगी। ओके, तो इट इज़ वेरी गुड थाट्स गिवन बाय ऑनरेबल मोदी जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात इस चीज़ को बोली है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना बहुत ही ज़रूरी है। वी नो नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री, वी शुड टू मेक आवर प्रोडक्ट इन आवर ओन कंट्री, इन आवर ओन लोकेलिटी, एंड उसी लोकेलिटी में हम अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से उसका सप्लाई करें कि उसकी डिमांड अधिक हो। एक आप बोलो कि एक सप्लाई चेन बने जिसके थ्रू मैन्युफैक्चर से होलसेलर दैन रिटेलर just form all these supply chain into your only own locality, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्होंने आज एक एग्जांपल और बोला, मैं इसके थ्रू बताना चाहती थी कि मेरा टॉपिक तो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, बट मेन चीज़ मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आपको ये वीडियो के पहले उनके बारे में कुछ बताऊंगी जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है 12 मई 2020 को, मीन्स आज। उन्होंने एक बात ये भी बोली कि जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं ग्लोबल ब्रांड से इट विल गोइंग टू बी वेरी स्टाइलिस्ट, और मैं इस चीज़ को पहनूंगा तो मैं अलग ही दिखूंगा। तो वाई वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दैट, हम उस पहले भी वो जो प्रोडक्ट एज ए ग्लोबल ब्रांड हम लोग उस चीज़ को लेते हैं, वो भी उनके यहाँ एक तरीके से एक लोकेलिटी में उस चीज़ का मैन्युफैक्चर हुआ होगा। जब वहाँ के लोगों को पसंद आ गया होगा तो उसकी मार्केटिंग और उसके एरिया के बाहर होने लगी। तो क्यों ना हम लोग वही चीज़ अपने लोकेलिटी में फॉर्म करें एंड उस लोकेलिटी को ऐसा बनाएं कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ से निकला उससे हम लोग अपने कंट्री में ही एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई कर सकें। वाई वी जस्ट टेक द हेल्प ऑफ द अदर कंट्री। ओके, सो आवर ऑनरेबल मोदी जी हैज़ डिक्लेयर्ड ऑल दिस थिंग टुडे इज रिलेटेड टू द लॉकडाउन, and it is going to be a fourth phase of COVID-19, so no need to worry. Okay, now come to the our business studies topic. First we have already read about the first one, डिपार्टमेंटल स्टोर, जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर में आता है। पब्लिक सेक्टर में आपके 3 आते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, देन सेकंड वन इज द स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज द गवर्नमेंट कंपनीज। Now come to the statutory corporation. Okay, they are created by special acts of parliament which contains their power and function, rules and regulation regarding their employees and its relationship with the government departments. स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन का आप एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज दैट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इन विच फर्स्टली वी हैव टू पास द एक्ट फ्रॉम पार्लियामेंट। हमें एक पार्लियामेंट से एक्ट के किसी एक स्पेसिफिक एक्ट के पास की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही हम एंटरप्राइज को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, इसका एक सिंपल सा आप बोल सकते हो कि दिस स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट। एक इसका स्पेशल एक्ट होता है ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंशियली जो भी इसकी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू ही होती हैं। फाइनेंस का मैटर जब भी होता है गवर्नमेंट ही इसको लेती है, गवर्नमेंट ही इसको फॉर्म करती है। बट यहाँ पे एक इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि गवर्नमेंट तो इसको बनाती है, बट वो अपना खुद का ट्रांजैक्शन ऑन देयर ओन बेसिस दे आर डीलिंग विद देयर डे टू डे एक्सपेंसेस। इसमें कोई भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियली इनको सपोर्ट नहीं रहती है। नेक्स्ट थिंग, इट्स पावर, ऑब्जेक्ट, लिमिटेशन एटसेट्रा ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। इट मीन्स वॉट, इज अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इट मे बी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट मे बी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सारे जितने भी मैंने अभी बोले हैं सारे जो भी हैं स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जांपल, यू कैन टेक इट एज अ एग्जांपल ऑल्सो। एंड अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन लग रही है कि हम एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, तो यू कैन जस्ट रिवाइंड माई वीडियो एंड जस्ट टू सी व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज here just given the it is already I have explained what is statutory corporation. It is totally established by the state, or you can say the state means the government. Okay, सारा चीज़ इसका लॉ बेस्ड होता है, गवर्नमेंट ही इसे फॉर्म करती है। बट ये एक डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे एक्सपेंसेस डे टू डे बिजनेस को चलाती है रेगुलर बेसिस पे, उनका यही काम रहता है। बट हाँ,
एक तरीके से इनका गवर्नमेंट का टैग लगा रहता है कि दे ऑलवेज कम इनटू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. कम टू द नेक्स्ट वन, फीचर्स. Statutory corporation is fully owned by the government. It means what? This statutory corporation is fully owned by the government means what? You can say who made this? Government. ये हमें क्लियर है कि बनाता कौन है? गवर्नमेंट. एक्ट ऑफ who made this is the question. अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो आपने स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन देखा ये बनाया कौन है, तो आपको फर्स्ट लाइन में आपने पढ़ा कि फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. बट अगर डायरेक्टली आपसे कोई पूछता है हु मेड दिस स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, यू से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इट इज़ मेड. बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देता है? गवर्नमेंट देती है उसे. ओके. इट इज़ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. अब इसे सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कहा गया? सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब हो गया कि अब तो जब इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन्होंने अलग से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उस चीज़ का, और पार्लियामेंट सारी चीज़ें दोनों आप बोल सकते हो दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा से पास आउट करा रखा है, तो यू कैन से कि गवर्नमेंट का और इनका खुद का एक अलग एंटिटी बनता है, सेपरेट लीगल एंटिटी इनकी होती है. डायरेक्टली कोई भी इस पर केस कर सकता है, कोई भी सू कर सकता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे. ये नहीं कि आप वहाँ के एम्प्लॉय हो तो आपको कोई हक नहीं है कि वो गवर्नमेंट बेस्ड एक आपका एक्ट है, एक्ट के थ्रू पास हुआ है, तो यू कैन नॉट गोइंग टू स्यू अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. आप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कर सकते हो एंड वो आपके ऊपर भी स्यू कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वन, इट इज़ हैविंग ओके इट इज़ डन. इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. वाई दिस लाइन इज सेड हेयर. जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होता. अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंपेरिजन देखा जाए तो हम लोगों ने उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ऑल द थिंग्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. जो भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं. जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोलते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट का जॉब करता है तो वहाँ के सरकारी नौकरी है इसकी. ये सारी चीज़ें बोल बोल के हम लोग उस चीज़ को एक तरीके से डिनोट करते हैं कि दे आर जस्ट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं, गवर्नमेंट फॉर्म ज़रूर करता है but it is just totally different from the departmental undertakings, because in this you can say that it is not related to the government employees. इनका एक खुद का आप बोल सकते हो कि एक एंटिटी होती है, इनकी खुद की पहचान होती है, इनका डे टू डे के बेस पे रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंस होता है. जैसे आप आरबीआई का एग्जांपल ले लो कि आरबीआई जो अपना रोज़ रोज़ ट्रांजेक्शन पास करती है, सारी चीज़ें पास करती है, तो उसका एक अपना अलग से होता है सारी चीज़ें. ओके. दे जस्ट टेक द मनी फ्रॉम गवर्नमेंट. वो मनी तो गवर्नमेंट के थ्रू लेती है, बट द थिंग इज़ वो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन अपने रेगुलर बेसिस पे करती है, दे जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम. वो उससे क्या जनरेट करते हैं? अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बेस पे एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं आरबीआई में, जिसके थ्रू वो डे टू डे एक्सपेंसेस अपने चलाते हैं. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आप इनको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं कह सकते हो. ओके. क्योंकि गवर्नमेंट उसको मेड करती है, बट गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं करती है. जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू उनका आरबीआई में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके थ्रू ही वो अपना डे टू डे रेगुलर बेसिस पे जो भी एक्सपेंसेस जो भी चीज़ें होती हैं अपना वो करते रहते हैं. ओके. नेक्स्ट थिंग इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. अब सारी चीज़ें तो सही है कि इनका खुद का अपना अलग से होता है, बट यहाँ द थिंग इज़ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. क्योंकि गवर्नमेंट तो एक फॉर्म दे दिया उसको कि मैंने आरबीआई का वो बनाया है तो मैंने एसबीआई को ओन एंड कंट्रोल करता हूँ. ठीक है, सारी चीज़ें वो सही हैं. आरबीआई अपना खुद का एक उनका सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट गवर्नमेंट ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस चीज़ के लिए बनाया रहता है कि डिक्लेयर किया रहता है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस सारी चीज़ों में होनी चाहिए, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे कोई भी हो एक्ट. आप उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो गवर्नमेंट अपॉइंट करते ही हैं जो उनके हेड होते हैं वो. इट प्रिपेयर्स इट्स ओन बजट एंड कैन रिटेन इट्स अर्निंग विच कैन बी यूज फॉर इट्स बिजनेस. अब इट्स प्रिपेयर ओन बजट एंड कैन इट्स अर्निंग, इट मीन्स वॉट? दे आर जस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं मिलता है. दे आर जस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. डे टू डे प्रोडक्शन भी कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ऑलवेज वी सॉ दैट गवर्नमेंट शोज अस अ बजट इन विच कितना हम एक्सपेंस किस चीज़ में करना है, कितने ट्रेजरी में होना चाहिए, किस चीज़ पे हमें एक्सपेंस नहीं करना है, किस पे करना है. बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता है. आरबीआई का, एसबीआई का, किसी का भी कोई ऐसा रोल नहीं होता है, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो फरवरी में जो भी बजट पास होते हैं उस पर वो थोड़ा भी ध्यान दें.
बिकॉज दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो फाइनेंशियली उस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो देर ऑन देयर ओन बेसिस, दे आर जस्ट जनरेटिंग ऑल द रेवेन्यूज एंड आफ्टर द revenue they got, they are just making use of our day to day expenses. Okay, and next thing is profit is not the main motive. फर्स्ट थिंग कि डिपार्टमेंटल में तो हम लोगों ने देखा कि जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ओके, सारे जो भी उनके रेवेन्यूज़ होते हैं, जो भी उनके इंसेंटिव्स होते हैं, जो भी उनके रिवॉर्ड मिलते हैं, वो सारे चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, जो भी वो सारा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है. बट स्टैचुटरी कॉरपोरेशन हम लोग देखें तो इट्स मेन मोटिव इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इनका मेन मोटिव होता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. इनका मेन मोटिव होता है कि कौन सी सोसाइटी को हम वेलफेयर मतलब वेलफेयर क्या कर सकते हैं सोसाइटी का. तो दिस इज़ नॉट द प्रॉफिट, इज़ नॉट द मेन मोटिव. इनका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं रहता है. दिस इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द सोसाइटी. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. इट हैज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. अब इट हैज़ अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आप बोल सकते हो कि हाँ, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि एक तरीके से अगर हम इस चीज़ को देखें तो वो किसी भी चीज़ को लेके आंसरेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, तो वो उस चीज़ का सारा डिटेल, वो सारा चीज़ वो गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं. बट हाँ, ये सिर्फ कहने को है कि वो सारा रिकॉर्ड सारी चीज़ें नहीं देंगी, बट एज अ ऑडिटिंग बेसिस उनके सारे रिकॉर्ड्स चेक होते हैं और जो भी इश्यूज़ होते हैं वो उसके लिए आंसरेबल होते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, यूजुअली इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. अब गवर्नमेंट तो उस चीज़ को फॉर्म किया स्टैचुटरी कॉरपोरेशन को, क्या तो क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई इंटरफेरेंस होता है? आप बोल सकते हैं नो, देयर इज नो एनी इंटरफेरेंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि गवर्नमेंट का जब रोल नहीं तो आप बोल सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इंटरफेरेंस होना ही चाहिए RBI SBI में, लाइफ इंश्योरेंस LIC कॉरपोरेशन में. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कम टू द मेरिट्स. इसकी कुछ आप बोल सकते हो मेरिट्स भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं. वी कैन गो थ्रू दिस वन. फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल गवर्नमेंट. अब फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल गवर्नमेंट मीन्स एक आप बोल सकते हो ना जिसमें गवर्नमेंट का रोल हो नहीं, फिर भी वो अगर एंट्री करना भी चाहती है तो वो चीज़ के लिए वो नहीं कर पाती, क्योंकि दे आर जस्ट टोटली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट. नो एनी इंटरफेरेंस, नो पॉलिटिकल पार्टी कैन इंटरफेयर इन दिस. जैसा कि मैंने आपको फीचर्स में बताया, और मैं ये चीज़ आपसे फिर से बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द फीचर्स, अगर आप फीचर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हो तो आप मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. यू कैन यूज़ योर ओन पॉइंट ऑल्सो. यू कैन मैंशन वॉट एवर द पॉइंट्स यू आर थिंकिंग इन योर माइंड. जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हो, बट हाँ इररेलेवेंस पॉइंट्स मत दे देना कि मैंने तो लिख दिया, ये कुछ मेरिट्स का साउंड कर रहा है कि मैंने लिखा तो हो सकता है मे बी ये मेरिट्स में आ जाए. ऐसा कुछ नहीं है. आपको एग्जैक्ट वही हेडिंग लिखनी है जो आप मेरिट्स में लिखना उसके लिए सही रहेगा, फीचर्स में लिखना सही रहेगा, एंड डीमेरिट्स में लिखना सही रहेगा. आप मेरिट्स का कभी कभी क्या होता है, बच्चे मेरिट्स और डीमेरिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं. मेरिट्स मीन्स होती है अच्छाइयाँ, डीमेरिट्स बोलती है क्या कमियाँ क्या नुकसान है, तो वो दे आर द डिफरेंट थिंग्स. ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. The government does not interfere in their financial matters. I have already told you that the government has just formed this enterprises, but उनका कोई भी इंटरफेरेंस उनके फाइनेंशियल मैटर में रहता ही नहीं है. उनको कोई भी जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारा प्रोडक्शन करते हैं, सारी चीज़ें करती हैं. जो भी एंटरप्राइजेज रहते हैं वो खुद डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट होता है सारे प्रोसेस से वो खुद करते हैं. कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं मिलता है. और आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल मैटर कोई भी अगर डिस्कस होता है, कोई भी इशू होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने डे टू डे बेसिस रेगुलर एक्टिविटी के बेसिस पे सारे रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अपने एंटरप्राइज को और लार्ज स्केल पे फॉर्म करते हैं. कम टू द नेक्स्ट वन. इट इज़ जनरली it is relatively free from red tapes and can take quick decision. अब red tapes आप बोल सकते हो कि इसमें कोई भी टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है. कोई ऐसा लंबे समय के लिए कोई भी चीज़ें इसमें रुकती नहीं है. इसका सारा चीज़ें क्विक डिसीजन बेसिस पे होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स पॉलिसीज आर subject to parliamentary control which ensures protection of public interest.
तो सारा जो भी एक्ट पास होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो किसी स्पेशलाइज एक्ट के थ्रू पास होती है, तो वो उस एक्ट का सारा मैटर जो भी रहता है, सारी चीज़ें होती हैं, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो पार्लियामेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे रहते हैं। एंड दे जस्ट एंश्योर दैट प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो सारी चीज़ें जो भी डिस्कशन होती हैं तो उनका मेन सब्जेक्ट यही होता है कि दे जस्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, उनके ऊपर एक पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है विच एनजीओ जो ये करता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, दे आर जस्ट डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ओके, कम टू द लिमिटेशन। अब हम लोगों ने फीचर्स देख लिया और मेरिट्स देख लिया। अब नाउ वी जस्ट कम टू द नेक्स्ट वन, लिमिटेशन क्या होता है। अब अच्छाइयाँ भी हम लोगों ने देख ली, अब इसमें जो भी कमियाँ हैं, जो भी डिसएडवांटेज हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑल्सो, कि आप अगर लिमिटेशन में कभी कभी आप उसको डिसएडवांटेज भी लिखोगे तो इट इज़ गुड। आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज इज द टू अदर थिंग्स, नो, दे आर जस्ट सेम, सिमिलर टू ईच अदर। नेक्स्ट थिंग, अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्शन आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन। यू हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि दे आर एक आप बोलो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो भी एक्शन लेती है एक सब्जेक्ट बेसिस पे लेती है, उसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गवर्नमेंट आपके ऊपर नज़र नहीं रख रही है या कोई चीज़ नहीं कर रही है। तो बट गवर्नमेंट का इतना रोल ज़रूर रहता है कि वो आपको एक टाइम लिमिट देती है कि आपको इतने से इतने समय तक ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हो तो वो तब उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। दे नॉट टोटली क्लोज द आइज। अब आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि मैंने तो अभी मेरिट्स में बताया कि दैट इज़ फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये सिर्फ कहने को। बट लिमिटेशन में देखा जाए तो गवर्नमेंट उस चीज़ को फॉर्म करके गवर्नमेंट वहाँ से लेट गो नहीं कर देगी सारी चीज़ों को, वहाँ पे गलतियों को रोकेगी भी, टोकेगी भी, और उसके एक टाइम लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो तो इट विल गोइंग टू बी अ वेरी, you can say it will not going to be very good for you all. Okay, not go beyond the limit allotted by government जो भी लिमिट आपको अलॉट करती है उसके बियॉन्ड कभी भी नहीं जाना चाहिए। if you are going beyond that limit then maybe there should be some issues created by the government. Okay, next thing, government and political interference have always been there where huge funds are involved. It means what? गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अगेन यू आर जस्ट थिंकिंग कि अभी तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो कुछ रहता नहीं है, बट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप बोल सकते हैं हैव ऑलवेज बीन ह्यूज फंड्स एंड इन्वॉल्व इन मेजर डिसीजन। अगर कोई आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हमेशा वहाँ पे रहता है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा फंड्स को इन्वॉल्व करना पड़े कोई ऐसा मेजर डिसीजन लेने के लिए तो ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी करेगी। बहुत पॉलिटिकल इशू भी रहेंगे कि हमें किस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें, कितने अमाउंट देने हैं, कितने फंड्स देने हैं, कितना ट्रेजरी में रखना है। ओके, तो इसमें आपका गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दोनों रहता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, where there is a dealing with public corruption exists at a large level. It means what? Ab corruption, you all know what is the meaning of corruption in Hindi. You can say, can I say in Hindi? Okay, corruption means you can say भ्रष्टाचार in Hindi we called it. जब कोई भी चीज़ हमारे पब्लिक से रिलेटेड रहता है then you can say there is always a corruption exist. Okay, इवन आजकल आप देखा करो प्राइवेट कॉरपोरेशन में, प्राइवेट कंपनीज में भी करप्शन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट थिंग, whenever it deals with the public then there is also corruption exists. प्राइवेट कॉरपोरेशन में भी करप्शन की आप चीज़ें देख सकते हो, वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप जितना भी कंट्रोल कर लो, जितना भी इस चीज़ को संभाल लो, बट वो चीज़ रुकती नहीं है, वो चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिसयूज देयर पावर्स एंड इंडल्ज इन अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रहता है, ये तो अपॉइंट रहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ऐसे ही किसी भी जो भी चीज़ गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया तो वो ऐसे ही तो गवर्नमेंट छोड़ नहीं देगी, उसके लिए एक बंदा उन्होंने अपॉइंट किया रहता है विच वॉज जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एनी एक्ट। ओके, तो दे आर जस्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट मीन्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट यू हैव टू डू वर्क। जो भी जिस भी एक्ट में कोई एम्प्लॉय अगर काम करता है, कोई भी चीज़ होता है, तो गवर्नमेंट उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलता है कि तुमको ये ही काम करना है। और गवर्नमेंट उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये भी ड्यूटी दी अलॉट की रहती है कि तुम्हारे ही हिसाब से सारी चीज़ें चलनी चाहिए। तो आप कैसे नहीं बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली इसमें गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। बस ये कहने को है मेरिट्स में कि गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता है,
बट आप खुद सोचो कि अगर आप कोई भी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश की हो और वो गवर्नमेंट का ही आप बोल सकते हो दे आर द सोर्स ऑफ इनकम थ्रू गवर्नमेंट फॉर योर एंटरप्राइजेस, तो गवर्नमेंट का जब रोल है तो यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होना ही है और लॉ बेसिस पे ही होगा। और रजिस्टर्ड भी होता है, हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी तब होता है जब इन्होंने अपना खुद का अलग से रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, बट गवर्नमेंट का रोल ओवरऑल रहता ही रहता है, दिस इज़ द फैक्ट। बट हाँ बोल सकते हो कि जितना गवर्नमेंट का रोल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रहता है उतना रोल हमें स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन में देखने को नहीं मिलता है। ओके, दिस इज़ द features, merits and limitation of statutory corporation. Next thing, we are in the next chapter, in the next topic we are just go through the government company, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स। आप इसको एक पॉइंट बना लेना या मैं आपको कोशिश करूँगी पॉइंट प्रोवाइड करूँ, बट प्लीज़ watch my videos daily. If there's any issues related to all these points you can just mention your comment box, and मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो चाहे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं सारा चीज़ आपको अवेलेबल कराऊँगी। ओके, so just please like and subscribe my video, and if there's any issue, if there's any question regarding this topic, then you can mention in the comment box. So thank you very much class for today.